Good afternoon. Here we start a new topic, work energy theorem or a kinetic energy. Work energy theorem or kinetic energy. The kinetic energy of a particle or a body, it is a ability to do work by virtue of motion. It means that kinetic energy, ability to do work by virtue of its motion. The work done by body to do some type of motion is known as its kinetic energy. It means suppose let us suppose a particle of mass m, comma, and a force तो ये कौन सा फोर्स है? अगर हम एक पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स applied comma, due to which its position and velocity changes r1 to r2 and v1 to v2 respectively. So the work done we written as work done by this force. Work done by this force be written like this by the formula. In moving, work done is by F dx r2 is this point to this point, r1 से r2 work done in moving from A to B is written is like that, where this force is constant for this small change of distance. Here force is constant for this small change of distance, so dr is very small, so we force is assumed to be constant. So let us suppose first equation, and we know that F equals to ma, force applied on a particle, we define as a mass, product of mass and acceleration. So ma, mass and acceleration, and by we transform this acceleration to velocity differentiation like this, and dv upon dt, here we multiply dr upon dt, here we multiply del r upon del r,
So no effect in equation, but be here this dr written denominator of dv vector and dr upon dt here. So f equals to m. This becomes velocity of a particle to be written as f v dv upon dr. Equation second, put in equation first. तो दिस इक्वेशन पुट करेंगे तो W is a वर्क डन, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर. सो स्केलर है, स्केलर होता है वर्क डन जो स्केलर फंक्शन है. तो f की जगह यहाँ पे f इज़ अ वेक्टर. तो देन here we take यहाँ f, we put f equals to this, तो v1 vector dv upon dr here and dr also this. So d2 upon d1 m, this cancel by this, तो v vector dv. Here the limit changes d2 d1 to d1 and dv1 dv vector w. तो m is constant, so it comes outside of integration, and the integration of v is becomes v upon end वेक्टर. तो ये v1 v2 vector integration applying vector integration. Here we applying vector integration, तो integration of vector v is similar to v upon v2 or v upon 2 and putting the limits. तो here we upper limit first minus lower limit, और 2 is upon by 2 m upon 2. तो w equals to m v2 upon 2 half m v2 upon 2 minus half m v1. तो इट्स ए काइनेटिक एनर्जी, तो k2 माइनस k1, और वी कैन से डिफरेंस डेल इन काइनेटिक एनर्जी. तो हेयर w इक्वल्स टू k2 माइनस k1. तो k2 इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी and k1 is initial kinetic energy. तो by this equation we say that this equation gives
gives knowledge about this equation is work energy theorem. This is work energy theorem. तो वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम और इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल और थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या बताती है, ये एक्चुअली इट दिस से दैट दिस इक्वेशन सेज दैट द वर्क डन बाय द फोर्स acts on the body is equal to the increase in its kinetic energy इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट्स किसके लिए, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करता है फोर्स, ये बताता है। मतलब ये है वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द इंक्रीजिंग इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट, सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो फोर्स आर कंजर्वेटिव, फर्स्ट वी हैव फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो फोर्सेज आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। दिस वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स ऑल्सो। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वी नो suppose they choose this path or this path for moving A to B. For moving A to B, we choose this path A, path P1, P2, path P3. So conservative force says that work done in moving A to B is constant. It does not depends upon path choosing by us. So that's why we say that that's a del operator, del F equals to 0. Del F equals to 0 for a conservative force. ये आप मैथ्स में पढ़ोगे। एंड दिस टॉपिक्स है, मतलब ये भी एक टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये अभी आगे आएगा, यहीं बता रहा हूँ। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। अगर फोर्स आर कंजर्वेटिव होंगे तो उसका डेल करेंगे, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0 होगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। एंड अगर बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन के ई और डिक्रीज इन के ई इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन। तो सपोज that's a kinetic difference equals to work done or some kinetic difference और now तो if particle start from rest, तो
तो V1 इक्वल्स टू लेट बी ज़ीरो, तो सो W इक्वल्स टू हाफ M V स्क्वायर, हेयर V2 इक्वल्स टू V, तो V स्क्वायर, हेयर V स्क्वायर आर नॉट टेकन, तो यहाँ पे स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, हाफ काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर. So it means kinetic energy is a amount of work that a body can do before it comes to rest, starting from an initial velocity V1 to rest before it comes to rest. और सिंपल में हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डेट डन बाय अ बॉडी टू डू ए मोशन और ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो फ्रॉम इनिशियली ज़ीरो एंड फाइनल somehow. So that's over. Thank you. Please subscribe and like. तो एक पॉइंट लिख लो नोट करके, नोट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम is also valid. It is also valid for conservative force, and second valid for non-conservative force, conservative force. तो ये इसका क्या होगा, इसका डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट था, कंजर्वेटिव में फोर्स वर्क डन जो होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा. So that's over. Thank you. Now next topic is about its lecture number. यह है lecture lecture 5 BSc first semester lecture 5 physics. Okay, thank you. Next topic is potential energy. Potential energy. तो suppose a particle चलो इसके भी दो पॉइंट हैं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हम किसको वी से दिखाते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइन potential energy is defined for a body as its capacity to do work due to its पोजीशन. वर्क करेगा ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. सपोज देयर इज अ स्प्रिंग and there is another spring. When we compress तो they become they now this. यहाँ पे है होल्ड है ये स्प्रिंग होल्डर. तो नॉर्मल कंडीशन एंड कंप्रेस्ड कंडीशन. तो some potential energy is stored in object in a of mass m in a object when we compress they come back with some velocity or with show some kinetic energy. Then तो ये क्या करेगा, ये कुछ वर्क करेगा. तो स्प्रिंग वाला केस हमने लिया तो उसमें कुछ वर्क होगा. तो वो वर्क होगा पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो चेंज होगी. वही तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो स्टोर है. और वही कन्वर्ट होगी हमारी मोशन के लिए. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी और इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तो सिमिलरली अगर हम कहें तो फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. तो हम ये लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से या वी से दिखाते हैं. तो वी तो हमने स्टार्टिंग से कहाँ से किया था, स्टार्टिंग की थी हमने समहाउ स्टैंडर्ड पोजीशन. तो अगर ये स्टैंडर्ड पोजीशन है और ये इसको हमने यहाँ तक ले आए थे कंप्रेस करके. तो ये स्टैंडर्ड हमने आर नॉट मान ली और ये आर मान ली. तो ये आर नॉट और R1. तो हमने कंप्रेस करी स्टार्टिंग फाइनल इनिशियल एंड फाइनल. तो एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर्ड होगी. तो D.dr फॉर फोर्स इज कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस कवर. डी आर के लिए हमने फोर्स हमने कांस्टेंट एज्यूम करेंगे. तो V इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन. तो वी हमारे पास क्या होगा वर्क डन. तो ये F से D तो DR. तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो माइनस में आएगी माइनस R to R0 where the standard position to standard position और ये प्रेजेंट पोजीशन और स्टैंडर्ड पोजीशन पे हमारे पास सपोज करो दिस इज स्टैंडर्ड पोजीशन और नाउ इट प्रेजेंट पोजीशन. तो इसके पास हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. और अगर हम इसका दूसरा केस लें स्ट्रेच वाला, यहाँ पे हम इसको स्ट्रेच करेंगे. यहाँ पे कंप्रेस करा हमने स्ट्रेच किया. तो यहाँ पे ये दूसरा आर केस है. तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. तो वो फोर्स इधर की साइड लगेगी. हमने जो इसको यहाँ पे रोक रखा है तो उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है ना. तो फोर्स तो है तो फोर्स DR.
तो मतलब फोर्स है तो वर्क डन, जब उसको छोड़ेंगे तो वो वर्क डन में चेंज होगा, तो ये माइनस में साइन आएगा। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू माइनस आर नॉट डी आर। द पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स टू स्टोर द बॉडी फ्रॉम इट्स पोजिशन प्रेजेंट पोजिशन टू स्टैंडर्ड पोजिशन। तो इट्स मीन्स दैट द फोर्स दैट वर्क डन स्टोर्ड इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन वर्क डन स्टोर्ड बाय द बॉडी बाय द बॉडी by the body moving from standard position to present position। मतलब वर्क डन जो स्टोर होगा बॉडी के अंदर, अगर वो मूव करे फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। सपोज दिस इज स्टैंडर्ड आर और दिस इज आर, तो उस साइड मूव करे तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो दिस साइड में होगा। तो वो कौन सा हमारा, तो अगर हम मूव करेंगे तो हम कौन से मूविंग होगी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगी। यहाँ पे कंडीशन नोट करो, कंडीशन है मोशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन इज कांस्टेंट। तो मोशन को कांस्टेंट करेंगे और इसका पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे। तो that's solve in standard position is capacity position in the capacity of body to do become 0। सही है। तो ये हमारे पास क्या है एक्चुअल में, ये हमारे पास क्या हुआ, अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ हमने सपोज करा, यहाँ पे भी ये पोटेंशियल वर्क डन का डिफरेंस ही तो है ये भी एक तरीके से। तो ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही तो है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ पे वर्क डन का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ वर्क डन है सिंपल है, डिफरेंस ऑफ वर्क डन। यहाँ पर अगर वर्क डन कुछ है, यहाँ पे W1 वर्क डन है, यहाँ पे W2 वर्क डन है, तो ये डिफरेंस ऑफ वर्क डन हो गया, ये V के इक्वल है। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, सपोज द स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन है, स्टैंडर्ड पोजीशन सपोज कर लो हमने इन्फिनिटी पे मान ली, स्टैंडर्ड पोजीशन अगर हमारे पास सपोज करा आर नॉट अगर इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन तो पोटेंशियल क्या हुआ फिर, व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास, पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन बनी, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन amount of work done in bringing in moving amount of work done in moving or bringing a particle from infinity